We are supposed to start with Nernst equation. Okay. If we consider a cell made up of silver and silver ion electrode and copper 2 ion electrode, the reaction taking place would be something like copper plus silver ions give us copper ions plus silver, and the E naught value would be plus 0.46 volts. Standard conditions and change in concentration of silver ions can be taken from this figure 20.23. See, just a second. Wait a second. So note that we have plotted the value of E cell non-standard conditions for the cell as a whole against the logarithm of silver ion concentration. This is the logarithm of silver ion concentration against the whole cell in terms of volts, and E naught of the cell is obtained at 0.46 volt as the top of this equation. Increasing the concentration of silver ions in the cell reaction, okay, makes the value of E cell more positive, reaching to the standard conditions E naught cell of value, which is 0.46 volts. Clear? What idea does this graph gives you? Class, any ideas, any guesses? Actually, the line written Yes, at the bottom of the figure gives you the exact idea. Increasing the concentration of silver ions make the cell reaction the value of E cell more positive. So increasing the concentration of silver positive ions in terms of log, as you can see, increases the value and takes up the value from 0 all the way to 0.46 volts, which was actually the E naught value or the E standard value. So under non-standard conditions, if the silver ions decrease this way, because that was a part of reactant decreases, the value also decreases and becomes less positive from 0.46 volts. I hope that's clear. If there is a question, please ask. Because it's very much similar to what we did on the previous page. Not this page exactly, but on the previous page. Okay, so moving on, let's explain a little bit more. The effect of concentration and temperature on the value of E cell can be deducted using the Nernst equation. Derivation of the Nernst equation is beyond the requirements of A-level syllabus. We don't go with that. We simply go with the equation and how to use that equation. For a given electrode, for example, a copper ion electrode, the relationship can be given as E is equal to E naught plus RT over ZF, natural log of oxidized form over reduced form. Now, let's go over all the symbols in the equation. E is the electrode potential under non-standard conditions. E naught, of course, is the standard electrode potential. R is the gas constant. We know its value, 8.314 in joules per Kelvin per mole. Okay, correct from chapter number 1. T is the Kelvin temperature. Z is the number of electrons transferred in the reaction. We are also going to use Faraday's constant for that purpose. F is the Faraday's constant in Coulomb per mole. Ln is the natural log. Oxidized refer to the concentration of oxidized form of the half equation. Fortunately for us, in the metal ion electrode, we can simplify the equation in 3 ways. Okay? The natural logarithm is related to log to the base 10 by this relationship. Natural log of x is actually equal to 2.3 log 10x. अल्वान और आयशा, चूंकि आप बायो से बिलोंग करते हैं तो आई डोंट नो कि आपको लॉग का चैप्टर ये आईजीसीएसई में था या नहीं था, अलबत्ता ये चीज़ जो है ये मैथमेटिकल है. Log of base 10 and natural log, ठीक है, can be converted into one another by this 2.303 factor, which is multiplied by when log of base 10 gives us the value of natural log. ठीक, so ये mathematical form है जो कि A level math students तो शायद इससे familiar हो, आप दोनों ना हो इसलिए आप दोनों के लिए बता रहा हूँ. ठीक, फिर से सर. Beta, it's a mathematical equation in which log of base 10 can be converted into natural log
by a multiplication factor of 2.303. Okay, so if we multiply the value of log 10 with 2.303, it can be multiplied with it can become equal to the natural log value. ठीक, एक मैथमेटिकल नहीं फैक्टर सर, है जो लॉग के फिर से चैप्टर्स में समझा ए दीजिए। लेवल के बच्चे इसमें मैंने समझाना कुछ नहीं एक्चुअली, मैं सिर्फ दो चीजों की कन्वर्जन के लिए एक फैक्टर गिनवा रहा हूँ जो कोई 2.303 है। ठीक है, इसमें समझाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है। मैं चूंकि मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैं समझता हूँ ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, चूंकि मैथ्स में लॉग का चैप्टर आई डोंट नो अभी पढ़ा है इन्होंने या पढ़ना है, मुझे इस बारे में नहीं है, पढ़ चुके हैं लेकिन सर। पढ़ चुके हैं ना। तो लॉग वाला चैप्टर अगर पढ़ चुके हुए तो इन्हें पता होता है कि ये 2.233 का फैक्टर कहाँ से आ रहा होता है। बायो वाले स्टूडेंट्स ने चूंकि इसकी कोई डेरिवेशन नहीं पढ़नी होती, इसलिए बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ्स में हमारे पास एक लॉग को दूसरे लॉग में यानी बेस 10 के लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का फैक्टर आता है। आप इसे इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं जिस तरह फिजिक्स में हमारे पास अमूमन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए जब हम बीच में कांस्टेंट ऐड करते हैं, ऐड करने से मुराद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वैसे यहाँ पर वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर या वो कांस्टेंट जो है वो 2.303 है। ये बात हो गई, बात क्लियर हो गया? सर ऑनेस्टली क्लियर नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा है कि इनके मैथ के चैप्टर में, और मेरे पास मैथ की बुक पढ़ी है पिछले साल से, तो मैं उससे कर लूंगा, क्योंकि मैंने सुना है ये बाकी चीज़ों में भी लॉग वाली चीज़ आ रही है, सो मैं कर लूंगा सर ये लॉग वाला चीज़। नहीं, बस अगर आपकी इक्वेशन इतनी याद रख लेना, डेरिवेशन की बायो के स्टूडेंट को जरूरत नहीं होती। अगर आपको सिर्फ ये इतना सा नहीं नहीं कन्वर्जन सर, वो फैक्टर पता वैसे हो ना। बाकी चीज़ों में सर ये आजकल चल रहा है लॉग सर, इसलिए हाँ सर। बेशक, अगर वो आप एक्स्ट्रा से करना चाहें श्योर गो अहेड, मैं उसे रोकता नहीं हूँ, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर जरूर पता होने चाहिए ताकि अगर आपको मैथ्स की जी बाकी सर। पूरी अंडरस्टैंडिंग भी ना हो तो आपको ये पता हो कि आपने कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो वो जी उसने सर। यहाँ पर एक्सप्लेन किया होता है, ये लिखा भी यहाँ पर बुक में इसलिए होता है कि मैथ स्टूडेंट तो ये बात बहुत आसानी से पहले से समझता होता है, बायो वाले स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाए। Now, moving forward, at standard temperature, the values of RT and F are constant. हमें R की, T की, F की values पता होती हैं, वो हर स्टैंडर्ड टेम्परेचर के हिसाब से वही वाली वैल्यूज होंगी। पर डेज कांस्टेंट को हमने इस चैप्टर में प्रीवियसली यूज किया है, वर्क एग्जांपल्स में आप उससे फेमिलियर हैं। टी की वैल्यू भी आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होती है। आर तो ऊपर ही चुके 8.314 लिखा हुआ था तो उसके लिए तो और कोई बात नहीं। ठीक, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस कॉपर। ये इसके आगे जो प्लस लिखा हुआ है ये मिस्टेक एक्चुअली, ई के ऊपर सिर्फ माइनस साइन आता है, इसके आगे कोई प्लस नहीं आता। ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक इन बुक, जो आगे चल के उन्होंने बुक के अगले प्रिंट्स में वो एंड में जो मिस्टेक सेक्शन होता है उसमें क्लैरिफाई की हुई है। ठीक, सो रिड्यूस फॉर्म ऑफ द मेटल, the concentration of metal does not change, so the ratio of oxidized reduced form can be written as oxidized form. Example, copper 2 ions, so the relationship becomes this. ठीक, ये क्लियर है? किसी को ये रिलेशनशिप ना समझ में आता हो? E is equal to E naught plus 0.059 over Z log 10 and this oxidized form. मैं इसीलिए क्लियर कर दूं। ठीक है, हमारे पास ऊपर क्या था, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ क्वेश्चन पे। आर टी ओवर जेड एफ, आर की वैल्यू पुट करें 8.314, टी की स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू पुट करें, ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करें, उसके बाद नेचुरल लॉग कन्वर्ट करने के लिए लॉग 10 में 2.303 का फैक्टर पुट करें। ये चारों लें और इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 0.059 आएगा। एक तो ये पार्ट है क्वेश्चन का जो समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा जरूरी है समझने का, कि हमने इससे पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ओवर रिड्यूस्ड फॉर्म लिखी थी, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर बेस 10 में डिस्कस करेंगे और इसे डिस्कस करते हैं कॉपर आयंस और कॉपर के हिसाब से, तो चूंकि मेटल आयंस दोबारा सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हमारे पास सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सिर्फ एक्वस आयंस का फर्क आ रहा होता है, तो हम उसकी रिड्यूस फॉर्म को इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आना होता, हम सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक, तो वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, और लीशेटलियर इक्विलिब्रियम पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन मैटर करती है,
ठीक है। अगर गैसेस हों तो उसका प्रेशर भी मैटर करेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता। सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, उसमें इस तरह का डिफरेंस नहीं कंसिडर होता। हेंस कॉपर विल नॉट बी कंसिडर्ड ओवर हियर, हेंस रिड्यूस्ड फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड ओवर हियर। कॉपर आयंस ऑन द अदर हैंड और डीऑक्साइडाइज्ड फॉर्म जिसको कंसिडर करना जरूरी है, ठीक। और याद रखिएगा कॉपर आयंस को हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, उसकी रिडक्शन होती है तो कॉपर बनता है, जिसे हम इस वक्त रिड्यूस्ड फॉर्म बुला रहे हैं, ठीक। याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए अगर आपने सिंपल रिडक्शन इक्वेशन लिखी हुई है जो कि हम ई स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्म होती है वो यूजुअली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है और राइट हैंड साइड स्पीशीज जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। Hence इस इक्वेशन में कॉपर सॉलिड रिड्यूस फॉर्म है जिसे हम यहाँ पर omit कर रहे हैं, इस वक्त यूज नहीं कर रहे, और कॉपर आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है जिन्हें हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयंस पर ही डिपेंड करेगी, ठीक। ओके, अब ये जो इक्वेशन है नर्नेस्ट की, इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती है, एक ही जो ऊपर दी हुई है कंप्लीट नर्नेस्ट इक्वेशन, एक चीज जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का सिर्फ, जो कि स्टैंडर्ड पे यूज होता है। लेकिन इसने बहुत इंपॉर्टेंट नोट नीचे लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये चीज प्ले होती है क्वेश्चंस में। नोट इफ द टेम्परेचर इज नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द फुल फॉर्म ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन वुड बी यूज्ड, यानी कि जब टेम्परेचर ये नहीं होगा 25 या स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन मिसिंग होगी, आप ये फुल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन की जो हमारे पास टॉप पे दी हुई है, ठीक है। however अगर आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम है और पूरी सारी कंडीशन स्टैंडर्ड में आती है तो ये आप वो बॉटम वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, clear? Which means as soon as you're going to read the statement of the question, you would come to know that which equation form you're supposed to use. क्या कंडीशन स्टैंडर्ड है और आपने बॉटम इक्वेशन यूज करनी है, या कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है और आपने टॉप इक्वेशन यूज करनी है, क्लियर? आई होप ये चीज सबको जी समझ सर। आती है, ठीक है। Because if you understand this, we are going to wind up our class on this topic. हम अगला, हालांकि छोटा है लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा टाइम ऊपर चला जाएगा। I don't want to exceed time, और आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए मैंने three big topics consider किए और वो तीनों की तीनों go through किए हुए हैं, ठीक है। Means going a little back, we started off with E0 values, oxidizing and reducing agents, ठीक है। सर इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हमें कितने दिन हो गए हैं? मेरा ख्याल है इट्स लिटिल मोर देन अ वीक, ठीक है। और उसके बाद कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के बाद फिर हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है। सो दीज आर थ्री बिग टॉपिक्स एंड इट्स अबाउट टाइम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। करें वाइंड अप? एक क्वेश्चन है सर, जी वो जी सर आपने कहा था वो आप रिलेट करेंगे कंसंट्रेशन को और नर्नेस्ट इक्वेशन को, कि किस तरह अफेक्ट करता है नोट वैल्यू पे। इसे कल करें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये ठीक है, आंसर, ठीक है। कल आते ही ठीक है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करें, रिमाइंड मी, आई एम वेरी फॉरगेटफुल, डू रिमाइंड मी एंड आई ऑफ कोर्स डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इनफैक्ट हम ये जो एग्जांपल्स नीचे ली हुई है ना, इनमें से भी कंसीडर करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छी ओके तरह सर, से आंसर किया जा सके, ठीक। ठीक है सर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।